mentors reminds us that the true achievement is defined by the positive impact we create in the lives of others. With this sentiment, we warmly welcome our distinguished guests, whose gracious presence adds remarkable value to today's event. We are delighted to introduce our respected guests. Kindly join us in giving them a warm round of applause. Shri Suresh Dal sir, the esteemed chairman of PIDE. And now, I am equally honored to extend our welcome to Dr. Rishabh Chugh sir, Vice Chairman of PIDE Ansals, Priyanka Chugh ma'am, Manager of PIDE Sanskriti School Ansals, Hani Gulati sir from PIDE Kiddos, Jasmine Gulati ma'am from PIDE Kiddos, Kalpana Lathar ma'am, the Principal of PIDE Ansals. Let's welcome them all with a huge round of applause. As we prepare to step into the tapestry of treasured memories, let us first invoke the divine grace of Goddess Saraswati, the radiant source of wisdom, harmony, and enlightenment. For just as a single flame can chase away the darkest night, knowledge too has the power to awaken and elevate the soul. In this spirit of light and learning, we cordially invite our respected guests to adorn the stage and kindle the ceremonial lamp, marking the beginning of this beautiful celebration. It is my immense pleasure to welcome our management and the parents for this event. Some of you must be wondering why the name is Bachpan 2.0. You all know that we did the function in two parts for the pre-primary wing. The first one was Bachpan. This is Bachpan 2.0. In the first one, the theme taken up was that too much of expectations from the society, parents, teachers, peer group, it sort of curtails the growth of a child. Children are pushed into various, I'm using the word pushed, I'm sorry for that, but I'm using it, into various hobby classes, dancing, singing, skating, swimming, painting, conversation and whatnot. After school hours, we learned everything without this particular pressure. And as a teacher, it really breaks my heart when I see the students saying sorry to the parents for not standing first in a particular competition. It really breaks my heart. And it makes me wonder, where are we taking our next generation? We all know it is about competition. But remember, you all learned participation is everything and winning is not.
And what are we teaching our children? That winning is everything. So that jealousy, that anxiety, it takes roots right from childhood. That was covered in the first part. In this, what are their dreams? What should we be focusing on? Now some of you can question, मैम क्या बच्चों को इतनी बड़ी बात समझ में आएगी? Remember the movie तारे ज़मीं पर? Everybody said the movie is for children. When we watched it, we realized the movie was not for children, it was for teachers and parents. बच्चों की फिल्म तो नहीं थी वो. It was for parents and the teachers to learn. Same way, the themes of the functions are for us to learn. Because we have got innocent kids. They'll take the path on which we will put them. Let us teach them to dream about being a good human being. Because you people must have heard that saying, that what should I be in future? Whether I should be a doctor or an engineer or a lawyer, what? And the answer given to the child was, be a human being. There is a lot of scope in that particular direction. We need people with empathy. We need people with emotional strength. And that's what Education 4.0 touches upon. And that's what the world will be needing in future. Emotionally strong human beings. So let's work together as partners in raising up beautiful human beings with empathy, who are emotionally strong, who know that if their friend has fallen down while running a race, they can give their friend a hand and not run off because they need to stand first. Those who enjoy taking part in a competition and not only winning, they enjoy dancing, they enjoy singing, they take part because they are loving it. Let's get together, watch this, and take a pledge that will raise emotionally strong children, will raise children full of empathy, will raise children who enjoy life, who love life, and who do not take life as a race. This is a very small step taken in that direction. I hope you all will enjoy the event as much as we enjoyed preparing for it. Again, I'll say one thing, I always repeat when the functions are there. Remember, the children age group is 3+, 4+, and 5+. They are not professional dancers, and the kids are very moody. They'll dance one day and the next day they'll be like, "Aaj to dil nahi hai." They'll be dragging, catching hold of their friend's hand, not worried for their performance, rather, "तू गलत जगह पे खड़ा है, तू इधर आ जा." वो पूरा डांस they'll be like, "तू गलत जगह खड़ा है, इधर आ जा." और मैंने इसके साथ डांस नहीं करना, इसने सुबह मुझे ये बोला था, मेरा तो पार्टनर ही बदल गया. We have seen all that in the practices. I hope we will not see it today, but if we see it, I hope you all will enjoy as much as we enjoyed preparing. They've really worked hard, and your claps will give them strength for the performance. Thank you so much, and let's enjoy the event. Thank you, ma'am, for those heartfelt words. Your speech is a reminder that childhood, fleeting as it may be, leaves a timeless imprint on our hearts and imaginations to wander further into this world of nostalgia and wonder. We now invite you to experience a poem that brings to life the magic and melancholy of bachpan. छोटी छोटी हंसी, नन्हे कदमों की छाप, खेलों की गलियों में गूंजती थी हर आवाज़, कागज़ की नावों में तैरते थे अनगिनत सपने, और आसमान भी लगता था हमारे नन्हे हाथों के पास. पेड़ों की डालियों पर झूलते थे अरमान, धरती की मिट्टी में बुनते थे रंग बिरंगे पैगाम. हर कहानी में छुपा था जादू का संसार, हर आँख में चमकता था उजले कल का प्यार. पर वक्त की रेत धीरे धीरे बह गई, कुछ सपनों को बंदिशों में कैद कर गई.
वो खेल, वो दिन, वो मुस्कानें खिसक गई, लेकिन यादों की खिड़कियों में वो पल अब भी टिक गई। आज हम फिर लौटे हैं उस रंगमंच की ओर, जहाँ बच्चे के सपने ने पंख फैलाए और उड़ान भरी। बाधाएं भले थी, पर अब उनका पराक्रम नहीं रोक पाएगा। सपनों की दुनिया में हर बच्चा फिर चमक जाएगा। चलो देखें उस नन्ही आत्मा की उड़ान, जहाँ हर ख्वाब पाता है अपनी पहचान। बचपन, वो सुनहरी उम्र, वो जादुई सफर, सपनों का रंगमंच, जहाँ हर दिल है विजय और असर। थैंक यू। थैंक यू। फ्लैशबैक। जो कल अधूरी थी कहानी, आज उसका नया मोड़ आया है। जिंदगी के पन्ने पे लिखने एक नया सपना छाया है, एक नया सपना छाया है। श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुर सुधारी। बरनौ रघुबर विमल जसु, जो दायक फल चारि। बुद्धिहीन तनु जानिके, सुमिरो पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहु मोहि, हरहु कलेश विकार। उजागर जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर। दूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संगी। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर। जय
जियाए श्री रघुवीर हर्षि पुरनाई रघुपति कीन्ही बहुत बड़ाई तुम मम प्रिय भरत सम भाई सहस बदन तुम्हरो यश गावे अस कहि श्रीपति कंठ लगावे सनकादिक ब्रह्मादि मुनीसा नारद सारद सहित अहिसा वेद दिक्पाल जहाँ दे कवि कोविद कहि सके कहाँ दे जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीस तिहु लोक उजागर जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीस तिहु लोक उजागर जय उपकार सुग्रीवहि कीन्हा राम मिलाय राजपद दीन्हा उपकार सुग्रीवहि कीन्हा राम मिलाय राजपद दीन्हा तुमरो मंत्र विभीषण माना लंकेश्वर भय सब जग जाना तुमरो मंत्र विभीषण माना लंकेश्वर भय सब जग जाना जुग सहस्त्र योजन पर भानु जुग सहस्त्र योजन पर भानु लील्यो ताहि मधुर बल जानु मुद्रिका बेली मुख मारी जल दिलांगी गए अचरज नारी दुर्गम काज जगत के जेते सुगम अनुग्रह तुम्हारे तेते जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीस तिहु लोक उजागर जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीस तिहु लोक उजागर वो बचपन का ज़माना बड़ा ही प्यारा था। हर दिन एक नया सपना, नई कहानी का इंतज़ार था। ना कोई भेदभाव, ना ही दिलों में कोई दरार, सच्ची दोस्ती और बस प्यार ही प्यार। और आज हम बचपन के उस दौर को देखेंगे जहाँ हर उड़ान एक दिशा देती है, पर हर दिशा मंजिल नहीं होती। आज हर बच्चे के दिल में एक सपना पलता है। कोई डॉक्टर बनना चाहता है, कोई कलाकार, कोई नेता। पर इन सबके बीच एक सपना ऐसा भी है जो दुनिया को बेहतर बनाता है। आइए देखिए कुछ दोस्तों की कहानी जो सिखाते हैं कि असली सपना क्या होता है। So have you all decided? तुम सबको याद है ना, आज मैम ने हमसे हमारे ड्रीम डिस्कस करने हैं। यस, बट इसमें इतना डिसाइड क्या करना? मेरा तो डिसाइडेड है। आई विल बी अ बिग बिजनेसमैन वन डे। कार, फेम, एरिस्टोक्रेसी। भाई मैं तो फुल टाइम स्लीपर बनूंगा। माय ड्रीम जॉब। मैं अपनी पेंटिंग से दुनिया को रंगीन बनाऊंगी। आई वॉन्ट टू बी अ पेंटर। एंड सिमरन, व्हाट अबाउट योर ड्रीम? I just want to be a good human. That's it. ये क्या सपना हुआ? ये वो सपना है जो मैं खुली आंखों से देखती हूँ, या यूं कहो वो सपना जो मुझे सोने ही नहीं देता। और रोहन, तुम्हें भी हमेशा कुछ ऐसा करने की सोचनी चाहिए जिससे तुम्हारी दादी को तुम पर प्राउड हो। तुम्हें पता है वो तुम्हारे लिए हमेशा बेस्ट सोचती हैं। हर बच्चे की आंख में एक चमक होती है, एक सपना जो उसे खास बनाता है। कोई पेंटर बनना चाहता है, कोई खिलाड़ी। मगर क्या किसी ने सोचा है कि सबसे बड़ा सपना क्या होता है? सपने सिर्फ सोने से नहीं, जागने से पूरे होते हैं। और जो सपना हमें दूसरों के लिए बेहतर इंसान बनाए, वही सबसे खूबसूरत सपना होता है।
जब जीत की चाह से इंसान खुद को भूल जाए, उसका दिल जीत हार जाता है। असली मुकाबला हमेशा अपने अंदर से होता है। गुड मॉर्निंग एवरीवन। और आज का हमारा टॉपिक है द स्टेज ऑफ ड्रीम्स, सपनों का रंगमंच। नाउ स्टार्ट राइटिंग योर ड्रीम्स। अकेले रास्तों पे ऐसे जैसे मेरे पीछे कोई भी ना, बढ़ता मैं गया ऐसे जैसे मुझे कोई भी ना रोक सका। वो ढूंढ रहे देखो मंजिल, मैंने माना रास्तों को ना जहां। कभी कोई नोच खरोच के भागे, कभी कोई पूछ क्या तेरा पता। मेरा जो सफर है वही मेरा घर है, मुझको ना दुनिया की है परवाह। मैं हूँ मुसाफिर चलता रहे, चाहे रोके टोके मुझे कोई भी यहाँ। मेरे जो है सपने वही मेरे अपने, मुझको ना दुनिया की है परवाह। मैं हूँ मुसाफिर चलता रहे, जो चाहे रोके टोके मुझे कोई भी यहाँ। लोगों ने बोला इन रास्तों पे जाना नहीं, ख्वाबों के पीछे जाके कुछ भी है पाना नहीं। देखो जमाना में पुराना हूँ मुसाफिर, जिंदगी ऐसे कैसे कल का ठिकाना नहीं। पाया है जिसे खुद को पानी सा में बहना चाहूँ, डरता ना लहरों से मैं बादलों में रहना चाहूँ। छू लूं मैं आसमां सितारों से ये कहना चाहूँ, तुझको ये है ना पता। मेरा जो सफर है वही मेरा घर है, मुझको ना दुनिया की है परवाह। मैं हूँ मुसाफिर चलता रहे, चाहे रोके टोके मुझे कोई भी यहाँ। मेरे जो है सपने वही मेरे अपने, मुझको ना दुनिया की है परवाह। मैं हूँ मुसाफिर चलता रहे, जो चाहे रोके टोके मुझे कोई भी यहाँ। यूं तो मेरी भी सुबह होती थी किसी खास के साथ, यूं तो मेरे भी हाथ में होता था किसी का हाथ। तूफान सा एक आया था, टूटा मैं घबराया था। अपनों को जीना ऐसे मैं कुछ ना कर पाया था। दिल की जुबान कह ना सका, आती अभी ख्वाबों में भी मेरी वफा। मेरा जो सफर है वही मेरा घर है, मुझको ना दुनिया की है परवाह। मैं हूँ मुसाफिर चलता रहे, जो चाहे रोके टोके मुझे कोई भी यहाँ। मेरे जो है सपने वही मेरे अपने, मुझको ना दुनिया की है परवाह। मैं हूँ मुसाफिर चलता रहे, जो चाहे रोके टोके मुझे कोई भी यहाँ। मेरा जो सफर है वही मेरा घर है, मुझको ना दुनिया की है परवाह। मैं हूँ मुसाफिर चलता रहे, चाहे रोके टोके मुझे कोई भी यहाँ। मेरे जो है सपने वही मेरे अपने, मुझको ना दुनिया की है परवाह। मैं हूँ मुसाफिर चलता रहे, जो चाहे रोके टोके मुझे कोई भी यहाँ। मेरा सफर Rohan, this is our chance. Let's win. Don't worry, I have planned everything, even a shortcut. I have seen this video in Rahul's phone. वो जरूर यही एक्सपेरिमेंट करने वाला है। और पंच ये है कि हमारी टर्न राहुल की टीम से पहले है। That's cheating. विनिंग अच्छी चीज है, मगर क्या अपनी ऑनेस्टी लूज करना सही है? तुम मुझे बताओ, प्लान क्या करना है? Let's recreate this experiment. And Miss सिमरन, इसे चीटिंग नहीं, स्ट्रेटेजी कहते हैं। स्ट्रैटेजी अपनी माइंड से होती है, कॉपी एंड पेस्ट से नहीं। बट रोहन को हार्ड वर्क से एलर्जी है। Hey, I just want result. इस रिजल्ट से तुम्हें ट्रॉफी तो मिल जाएगी, मगर पीस नहीं। आई एम आउट ऑफ दिस कॉम्पिटिशन।
impressive. Tell us how you built this. We found some references online and made improvements. श्योर रोहन? I hope this idea is original. रोहन, आप दोबारा सोचो, क्या आपने किसी और का आइडिया यूज किया? Yes, I did. But मैम, it takes courage to admit a mistake. एक अच्छा इंसान बनने की तरफ ये पहला कदम होता है. Team disqualified from prize. हमेशा याद रखना, असली जीत तुम्हारे आचरण से होती है, मेडल से नहीं. जीत वही सच्ची होती है जिसमें आत्मा खुश हो जाए। हार वही अच्छी होती है जो इंसान को बेहतर बना जाए। मुट्ठी में कुछ सपने लेकर भर कर जेबों में आशाएं, दिल में है अरमान यही कुछ कर जाएं, कुछ कर जाएं। सूरज सा तेज नहीं मुझ में, दीपक सा जलता देखोगे। सूरज सा तेज नहीं मुझ में, दीपक सा जलता देखोगे। अपनी हद रोशन करने से तुम मुझको कब तक रोकोगे, तुम मुझको कब तक रोकोगे। यही रास्ता है तेरा, तूने अब जाना है। हाँ यही सपना है तेरा, तूने पहचाना है। तुझे अब ये दिखाना है। रोके तुझको आंधियां या जमीन और आसमां पाएगा, जो लक्ष्य है तेरा, लक्ष्य तो हर हाल में पाना है। हिम्मत से जो कोई चले, धरती हिले कदमों तले। क्या दूरियां क्या फासले, मंजिल लगे आगे गले। हिम्मत से जो कोई चले, धरती हिले कदमों तले। तू चल यूं ही अब सुबह शाम, रुकना झुकना नहीं तेरा काम। तू चल यूं ही अब सुबह शाम, रुकना झुकना नहीं तेरा काम। पाएगा जो लक्ष्य है तेरा, लक्ष्य तो हर हाल में पाना है। I feel bad for him, but he should not have done that. Mistakes are fine if we learn from them. बट वो सुनना ही नहीं चाहता। Oh, so now I am the bad guy. At least I tried.
You all act perfect. नो रोहन, हम तुम्हें जज नहीं कर रहे, हम बस चाह रहे हैं तुम्हें बड़ी पिक्चर दिखाएं। Bigger picture, please. This world only respect winners. कभी कभी इंसान को खुद की ही आवाज़ सुनने के लिए अकेला होना पड़ता है। भीड़ में खड़े होकर हम जीत सकते हैं, पर सच में जीत तब होती है जब हम खुद से मिलते हैं। खुद से मिलाने चला है ओ दीवाने, खुद ही को खुद से मिलाने चला है ओ दीवाने, गवाह है गुजरे जमाने चले हैं जब परवाने, खुद ही को खुद से मिलाने चला है ओ दीवाने। जब जिंदगी के शबे गम हो बेगाने, ख्वाबों के बादलों में उड़ा है दीवाने, गवाह है गुजरे ज़माने चले हैं जब परवाने, गवाह है गुजरे ज़माने चले हैं जब परवाने, खुद ही को खुद से मिलाने चला है ओ दीवाने। लिख दे ये फसाना, देखे जो जमाना, तारों से आगे हो ख्वाबों का ठिकाना, लिख दे ये फसाना, देखे जो जमाना, तारों से आगे हो ख्वाबों का ठिकाना, है चुका जहां छट गया धुआं, है रुका समा हम हुए रवां, है चुका जहां छट गया धुआं हम हुए रवां।
Everyone says I am wrong, but I just wanted to win. What's wrong in that? जीत मांगना गलत नहीं है, मगर जीत के लिए सही और गलत भूल जाना गलत है दोस्त। हाँ तो instead of choosing hard work, I have chosen smart work. That's it. I just took help from Rahul's phone. Help और theft, मदद और चोरी में बहुत फर्क होता है। तुमने ना सिर्फ उसका आइडिया चुराया, तुमने उसकी मेहनत, उसकी क्रिएटिविटी सब चुरा लिया। क्या ये सही था? Seriously, you want to ask what's wrong in that? Okay, maybe yes. सिमरन ने सही कहा था, but what's now? It's too late. Nobody is going to listen to me now. It's never too late. Think of someone जिसके लिए तुम कभी लेट नहीं हो। माना कि मुश्किल है सफर पर सुनो मुसाफिर हो, कहीं अगर तू रुका तो मंजिल आएगी ना फिर। कदम कदम मिलाए जा, गगन गगन झुकाए जा, रख हौसला कर फैसला, तुझे वक्त बदलना है। बंदिया राह पे चल बंदिया, बंदिया रे बंदिया, बंदिया रे बंदिया राह पे चल बंदिया। रुक जा रे बंदिया, ये रात जरा सी है, बात समझ बंदिया, कुछ देर ही बाकी है। रख यकीन आँखों से बादल, आज हट जाएगा, चाँद तेरी आँखों में बंदे चल के आएगा। चलना तो बंदिया, रुकना तो बंदिया, आगे चल बंदिया। चलना तो बंदिया, रुकना तो बंदिया, आगे चल बंदिया। सब मुझे गलत समझ रहे हैं दादी, मैंने सिर्फ जीतने की कोशिश की थी। Everyone thinks I am wrong, but I just wanted to win. जीत बेटा, हर जीत इंसान को बड़ा नहीं बनाती, कुछ जीत सिर्फ दिल में महसूस होती है। Victory doesn't always make you great, my child. पर दादी, मैं सबसे आगे रहना चाहता था ताकि सब मुझे बेस्ट समझे। सबके आगे रहने से ज्यादा जरूरी है सबके साथ रहना। बट दादी, मैंने झूठ बोला और सब कुछ बिगड़ गया। गलती हर कोई करता है, पर इंसान तब बड़ा बनता है जब वो अपनी गलती से सीख ले। आपको पता है, जब मैं आपकी उम्र की थी, मेरे बड़े हमेशा कहते थे, बड़ा इंसान वो नहीं जो दुनिया जीत ले, बड़ा इंसान वो है जो अपने मन को जीत ले।
मतलब दादी, क्या मैं अब भी सब ठीक कर सकता हूँ? जरूर मेरे बच्चे, एक अच्छा इंसान बनने के लिए कभी देर नहीं होती। कहाँ चले? अपना नया सपना जीने। शायद सिमरन का सपना गलत नहीं था, अब मैं भी चला एक अच्छा इंसान बनने। उड़ ले सारा तू, सीने विच नचदी आरज़ू, रुक ना जरा ना तू, राहें तुझसे है रूबरू, थोड़ा सा तू रख सबर, थोड़ी कर जल्दबाजियां, मंजिलों पे रख नजर, सफर लंबा है। ओ शेर की चाल चल रहा, बन के तू आग जल रहा, सांस में आधी आती है, खून तेरा उबल रहा। ये समानों में शोर है, तेरे हाथों में जोर है, इम्तिहानों की नोक में हौसलों से संभल रहा। मुट्ठी में है ये जमाना तेरा, लिखे तू एक फसाना तेरा। मुट्ठी में है ये जमाना तेरा, लिखे तू एक फसाना तेरा। रोशनी ढूंढे तेरे घर का पता, चांद होना चाहे सिरहाना तेरा। कह रहे रास्ते कभी ना सफर ये हो खत्म, बस तेरे वास्ते ये दिन निकला है। ओ तेरी भी चाल चल रहा, बन के तू आगे चल रहा, सांस में आधी आती है, खून तेरा उबल रहा। ये जमानों में शोर है, तेरे हाथों में जोर है, इम्तिहानों की नोक पे हौसलों से संभल रहा। कभी कभी एक बूढ़ी आंख ही सबसे साफ नजरिया देती है। जब दादी ने कहा कि दिल जीतना ज़रूरी है, तब रोहन ने समझा कि अच्छाई भी एक सपना है और वही सबसे सुंदर सपना है। गलती हर इंसान से होती है, पर उसे मान लेना ही इंसानियत है। जीतने वाला वो नहीं जो सबको हराए, जीतने वाला वो है जो खुद को सुधार ले। समय बीत जाता है, चेहरे बदल जाते हैं, पर अच्छाई के किस्से हमेशा दिल में बस जाते हैं। Look at us. We followed our dreams. And we still remain good humans. और ये हमारी सबसे बड़ी अचीवमेंट है। Wow, I'm so proud of ourselves. हर सपना पूरा हो सकता है अगर हम इंसानियत को जिंदा रखें।
चोरी से छुप छुप के, मैंने चोरी से छुप छुप के, तिनका तिनका चुन के सपना एक बनाया। डोरी से बुन बुन के, मैंने डोरी से बुन बुन के, टुकड़ा टुकड़ा सी के सपना एक बनाया। टुकड़ा टुकड़ा सी के सपना एक बनाया। सपने रे सपने मेरे सच हो जाना रे, हो जाना रे, हो जाना रे। सपने रे सपने मेरे सच हो जाना रे, हो जाना रे, हो जाना रे। आजा डायरी में छुपा दूं, आजा तुझको चोटी में बांधूं, कहीं किसी को न दिख जाए। सपने रे सपने मेरे, हाथ तेरा कस के पकड़ लूं, साथ साथ तेरे मैं चल दूं, डर तुझे ना किसी से लग जाए। सपने रे सपने मेरे, रातों को जग जग के, मैंने रातों को जग जग के, तारा तारा चुन के सपना एक बनाया। तारा तारा चुन के सपना एक बनाया। सपने रे सपने मेरे सच हो जाना रे, हो जाना रे, हो जाना रे। सपने रे सपने मेरे सच हो जाना रे, हो जाना रे, हो जाना रे। ला 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 ला। सपने रे सपने मेरे, ला 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 ऊंचाइयाँ बहुत हैं दुनिया में, पर सबसे ऊंचा दर्जा इंसानियत का है। सपने देखो, मेहनत करो, पर दिल में हमेशा जगह रखो अच्छा इंसान बनने की, अच्छा इंसान बनने की। ऊंचे रहे जो तेरे कद से इरादे, तो ये फलक मगरूर। है ठान लिया हमने, सूरज सा जलना है, सपनों को दो परवाज़ अगर उड़ने की तमन्ना है। ठान लिया हमने, सूरज सा जलना है, सपनों को दो परवाज़
So all of you, Sapne, cheer up. 1, 2, yes. Thank you. अगर किसी को ये लगे एक्शन मैच नहीं कर रहे थे तो जो अपने घर में 2 बच्चे हैं ना प्लीज एक बार उनको इकट्ठे डांस जरूर कराना. Then you will understand our plight. Means you tell them. अभी देखा मैं I was really enjoying. They were more worried कि पीछे वाले क्या कर रहा है. हम लोग ना पूरी रिहर्सल विद पीपीटी कराते हैं. Still एक बच्चा आज भी अमेज्ड था कि पीछे क्या चल रहा है. And this is the beauty and this is the innocence of childhood. I request Suresh sir to share his thoughts of wisdom. Not words of wisdom, but words of self जो एक्सपीरियंस वो बता रहा हूँ मैं आपको. पहली बात तो मैं पाइट के परिवार के साथ सबका धन्यवाद कर रहा हूँ, आप यहाँ पे आए हैं. और इस स्टाफ के लिए मेरे पास वर्ड्स भी नहीं है कहने के लिए कि मैं खुद भोगी हूँ. मेरे एक पोता है, एक पोती है, इनकी उम्र लगभग 3 साल की है. मैं मैंने बताता कि हमारे घर में 4 लोग हैं संभालने वाले, और 4 लोगों की वो बच्चे 2 बच्चे हमारे मिला के उनकी पूरे दिन में हवा खराब कर देते हैं. और इतने बच्चों को एक उंगली पर नचाना, एक साथ मिलाना, पता नहीं इनके पास जादू है, मंत्र क्या है, या कुछ हमारी कमजोरी है. मैं मानता कुछ हमारी कमजोरी होंगी कि हम अपने बच्चों को काबू नहीं रख पाते हैं. कई बार लगता है कि हम कुछ उनको जरूरत से ज़्यादा उनकी बातें मान लेते हैं. बातें माने, बच्चों की जिद पूरी करें, लेकिन एक हद से ना करें. जब ज़्यादा जिद पूरी करते हैं तो बच्चों की तमन्नाएं ज़्यादा बढ़ जाती हैं. जो उनको नहीं मिलना चाहिए वो मांगते हैं, हम नहीं देते तो बच्चा रोने लग जाता है. तो कुछ चीज़ें मना करना सीखें और बदले में क्या दें. जो आज आपने दिया है आपका समय, हम शायद बच्चों को समय नहीं दे पाते. मैं रिसेंटली मेरे साथ हुआ, मेरे घर में 3, एक मेरा पोता 7 इयर्स का है, एक पोती है 2.5 साल की, एक पोता है जिसका लकीली आज बर्थडे भी है. उन बच्चों के लिए हमने घर में देखा कि बच्चे टीवी बहुत देखते हैं. डॉक्टर में एक दिल्ली से हमारे दोस्त डॉक्टर ने उनसे बात की, करा इनकी टीवी बंद कराओ वरना बच्चों को बाद में दिक्कत आ जाएगी. सबसे पहले मैंने क्या, मेरे घर का टीवी अपना उतार दिया मेरे बेडरूम का, जहाँ मोस्टली बच्चे बैठते थे. और 2 दिन मैंने अपना टीवी बंद किया. उससे 2 फायदे हुए. एक तो बच्चों की टीवी छूट गया, प्लस साथ में बच्चे के साथ बॉन्डिंग बढ़ी. जिसका एक ताज़ा उदाहरण कल रात का है, ऐसे परसों का है. मैं 2-3 दिन से मेरे जाड़ में हिल रही थी, मैं निकालनी टाइम नहीं था, डॉक्टर के पास जा नहीं पा रहा था. मेरा ग्रैंडसन परसों आया शाम को, दादाजी अब आपको सिर्फ डॉक्टर को दिखाना है, उसके बाद आप जाना कहीं भी. और मेरे जो फ्रेंड हैं उनकी मदर डॉक्टर है सेक्टर 24 में हमारे घर के सामने, वो मेरे साथ कल गया. मेरा जाड़ का निकलवा के आया, मेरे को बड़ा आराम मिला. तो मुझे फील हुआ कि हम बच्चों से जुड़ नहीं पा रहे हैं. जुड़ना चाहते हैं लेकिन एक हमारी जेब में ये है, ये जुड़ने देता नहीं है. जब देखते हैं माँ बाप को बड़ा आसान लगता है. यहाँ अक्सर अभी एडमिशन चलते हैं, पेरेंट्स आते हैं, बच्चे आते हैं, अगर हम लॉबी में खड़े हुए पता लगता है उनको कि दुनिया है कहाँ. सबके हाथ में मोबाइल है. यू गो टू एयरपोर्ट, वेटिंग एरिया में फ्लाइट आने वाली है, फ्लाइट के अनाउंस भी जाते हैं, 50 लोग तो मोबाइल पे घूमते रहते, पता नहीं हमारी दुनिया है ही नहीं. न मेरे को पास बैठा है दाएं वो कौन है, मेरे बाएं में कौन बैठा है वो कौन है, पता लगता ही नहीं है. हम सब चिट्ठियाँ लिखना, एक पेरेंट्स को बच्चे को, हम किसी को, मुझे नहीं लगता हम किसी को आज बोल के बर्थडे विश करते हैं. हम समझते हैं कि एक लाइन का SMS डाल दिया, हैप्पी बर्थडे इज सफिशिएंट. ऐसा नहीं होता. अब एक व्हाट्सएप करें, एक पर्सनल कॉल करें, डेट मेक्स ए बिग डिफरेंस. अगर एक बच्चा भी अपने पापा को कहे हैप्पी फादर्स डे व्हाट्सएप पे, तो बड़ी तकलीफ होती है मन से. हम क्यों नहीं मिल पाते उनके साथ. मैं आपसे गुजारिश करूंगा जितना भी समय हो, थोड़ा सा बच्चों से आपको पार्क में लेकर जाएं, थोड़ा उनको गिरने दें, घुटनों पे चोट लगने दें, दर्द का एहसास होने दें जो हमने झेला है. हमारे घुटने फूट जाते थे, साइकिल से गिर जाते थे, तो घर जाके नहीं बताते थे कि अगर घर जाके बताएं तो और मार पड़ेगी. तो एहसास करें बच्चों के कि आज लाइट नहीं होती है, 2 मिनट में बच्चा पसीने हो जाता है. और पेरेंट्स भी चिट्ठी लिखते हैं, व्हाट्सएप करते हैं स्कूल में कि आपकी बस आ रही थी, जो कि मोरलेस कोई भी बस का रूट हमारे यहाँ 25 मिनट ज़्यादा नहीं होता.
कोई उल्टा जा रही है, कहीं भी जा रही है, तो 25 मिनट बच्चा जाए और बाई चांस मोटर है एक में तो खराब भी हो सकती है, नहीं है AC ना चले तो डायरी में लिख के आता है कि 11 मिनट तक आपका AC नहीं चला। हम क्या बनाना चाहते हैं बच्चों को, मुझे हम क्या बनाना चाहते हैं, थोड़ी सी तकलीफ, थोड़ी सी दुख सहने की ताकत बच्चों को मजबूत बनाएगी, कमज़ोर नहीं बनाएगी। और जब वो दौड़ता है ना, भागता है, अब हम सारा दिन AC में रहते हैं, हमारी बॉडी बदल गई है, हम थोड़ी सी भी गर्मी बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं। तो प्लीज़ बच्चों को स्ट्रॉन्ग बनाएं, मजबूत बनाएं, मस्त बनाएं। धन्यवाद। Thank you, sir. वैसे the trend is that once the chief guest and the guest of honor has spoken, nobody speaks and we end the function. लेकिन सर मैं एक खुद को ना रोक नहीं पा रही हूँ। एक छोटा सा एक आज प्रॉमिस करें हम खुद से। एक्चुअली जो ट्रेंड हम देख रहे हैं कि हम अपने बच्चों को वो सब कुछ दे रहे हैं जो बचपन में हमें नहीं मिला। Remember, we are giving them those luxuries which we never got. We had limited number of dresses. There was no choice of food. माँ ने बना दिया खा लो, otherwise बेटा भूखे घूमो. We had very limited number of shoes. शायद वो एक AC तो आप लोगों के बचपन में आया होगा, मेरे बचपन में तो even cooler was a luxury. And we are giving them those things which we did not get, and we are not giving them what we got. What we got was time of the parents, values from the family. We learned that yes, no is a word. हमें वो जमीन पर लेटकर रोना अलाउड नहीं था। आप सब लोगों ने ये देखा होगा बचपन में, you have demanded a thing and parents said इस महीने नहीं अगली बार लेंगे, and we are not teaching those things to our children. एक ही छोटा सा प्लेज करते हैं, बच्चों को वो देते हैं जो हमें मिला था, अपना समय and संस्कार, values. And let's raise a beautiful generation. Thank you so much for gracing the occasion. And there is arrangement of tea outside. Please join us for tea before you leave. Thank you so much.